السلام علیکم دوستو، میں ہوں حیدر گیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سال ولاگ۔ دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور ایک یونیک قسم کے ٹاپک پہ ہم نے بنائی ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ اس ٹائم جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جو لوگ انٹرنیٹ سے نیوز سے کنیکٹ رہتے ہیں وہ یقیناً جانتے ہوں گے کہ اس ٹائم تقریباً پوری دنیا میں 209 کنٹریز ایسے ہیں جنہیں جو ہے کرونا وائرس نے جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ سپر پاور امریکہ بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ تو دوستو آج کی جو ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی یونیک قسم کا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے میں درخواست کروں گا جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ کوئی بھی رائے دینے سے پہلے اس ویڈیو کو آخری سیکنڈ تک لازمی دیکھیں۔ یقیناً یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے وہ پہلو دکھایا ہے کہ آج تک یوٹیوب کی تاریخ میں ابھی تک، جیسے کہ 2019 دسمبر میں یہ وائرس دنیا میں آیا، اس وقت سے لے کر اب تک کسی نے بھی ایسی ویڈیو نہیں بنائی۔ دوستو ابھی تک آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کرونا وائرس اس دنیا میں موجود ہے، ختم نہیں ہوا۔ اور سب سے بڑی بات، جو یہ دنیا باتیں کرتی تھی سائنس کی ترقی ہو رہی ہے، انہوں نے مطلب ہر فیلڈ میں چاند تک تو پہنچ گئے، میڈیکل فیلڈ میں دیکھے تو بہت ساری جو ہے وہ دریافت ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے کرونا وائرس کے سامنے پوری دنیا کی سائنس ٹیکنالوجی سب ختم، بے بس ہو چکی ہے۔ تو دوستو اس کرونا وائرس کے بعد یقیناً جو ہے اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ امریکہ جیسا ملک چین سے جو ہے وہ مدد مانگ رہا ہے۔ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور اسی تبدیلی کو لے کے ہم نے آج کا جو ٹاپک رکھا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ دنیا میں دوستو بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے اس کرونا وائرس کے بعد۔ جیسے ہی کرونا وائرس ختم ہوگا، ابھی تو پتہ نہیں ہے کب ختم ہو، لیکن جیسے ہی ختم ہوگا دنیا میں بہت ساری چینجنگ آنے والی ہے۔ تو وہ چینجنگ کیا ہے، بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے جو ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ جو لوگ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کریں۔ تو لیٹس موو، سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت انٹرسٹنگ ہوا کہ ذرا ذہن کھول کے ویڈیو کو دیکھیے گا اور دل کو تھوڑا تھام کے۔ تو چلتے ہیں۔ ناظرین گرامی، وبا ساری دنیا میں پھیل چکی ہے، کاروبار حیات بند ہو چکا ہے، تجارت، تعلیم، مذہبی اجتماعات، سیاحت، غرض تمام شعبہ زندگی پاز کی حالت میں چلے گئے ہیں۔ پوری دنیا کی 7 ارب آبادی شدید ذہنی تناؤ اور خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ بیماری کی نہ تو علامات واضح ہیں نہ ہی وجوہات، بیماری کا ٹیسٹ بھی تاحال ممکن نہیں۔ کم ترقی یافتہ ممالک تو دور، ترقی یافتہ ممالک بھی اس وبا سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس ساری صورتحال کے تناظر میں یقیناً یہ سوال بہت اہم ہے کہ کیا یہ وبا واقعی ایک وبا ہے یا بائیو ٹیررزم ہے؟ یہ طاعون جیسی بیماری قدرتی آفت ہے یا یہ بایولوجیکل وار کا حصہ ہے؟ یہ ایک سانحہ ہے یا باقاعدہ پلانڈ سازش؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں کانسپائریسی تھیورسٹ ہوں، میری رائے سے سب کا اتفاق ضروری نہیں، تاہم اپنی گزارشات آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ ناظرین گرامی، میرے نزدیک موجودہ وبا ایک مکمل پلان کے تحت دنیا بھر میں پھیلائی گئی ہے، جس کے پیچھے عالمی خفیہ شیطانی تنظیم الومیناتی کا ہاتھ ہے۔ الومیناتی اور فری میسن وغیرہ کی تفصیلات کسی اور وقت، مگر مختصراً یہ بتاتا چلوں کہ یہ عالمی خفیہ شیطانی تنظیم ہے۔ اس کو چند انتہائی طاقتور خاندان پس پردہ رہ کر چلا رہے ہیں۔ یہ لوگ کسی مذہب کے پیروکار نہیں بلکہ براہ راست شیطان کے پجاری ہیں اور اسی کی ہدایات پر چلتے ہیں۔ کچھ لوگ بظاہر یہودی ہیں اور کچھ عیسائی۔ اس تنظیم کا سب سے اہم مقصد یہودیوں اور یہود نواز اور مذہب بیزار عیسائیوں کی مدد سے دجال کی آمد اور اس کی مطلق العنان حکمرانی کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اس بنیادی مقصد کو حل کرنے کے لیے انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے ایک منصوبہ بنایا ہے۔ یہ ایک انتہائی شاطرانہ شیطانی منصوبہ ہے جس کے بہت سے حصے اور بہت سے سٹیپس ہیں، اور یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ اس پورے منصوبے کا لب لباب یہ ہے کہ دنیا میں ون ورلڈ گورنمنٹ کا قیام، دنیا میں ون ورلڈ ریلیجن کا قیام، دنیا میں ون ورلڈ کرنسی کا نفاذ، اور آخر میں ون ورلڈ لیڈر پہ اتفاق کا قیام، یعنی دجال کو حاکم اعلیٰ تسلیم کروانا۔
दोस्तों इन मकासद को हासिल करने के लिए प्लान को मजीद छोटे प्लान्स में तकसीम किया गया है, जिनमें सबसे खतरनाक प्लान दुनिया की आबादी को 7 अरब से कम करके 1 अरब या 50 करोड़ तक लाना है। और यही वो मंसूबा है जिसका बराह रास्त ताल्लुक इस वबा से है। दुनिया की आबादी को कम करने के शैतानी मंसूबा साजों के नजदीक मुतादिद फवायद हैं। एक ये कि कम आबादी को कंट्रोल करना निस्बतन आसान होगा। बाद अज़ां इनमें चिप इंस्टॉल करके इनके बिहेवियर को मॉनिटर करना ज्यादा आबादी की निस्बत बहुत आसान होगा। दूसरा ये कि ज्यादा आबादी को मजहब से दूर रखने के लिए नफ्सियाती तौर पर तैयार करना मुश्किल है बनिस्बत कम आबादी के। नीज कम आबादी पे अपना कल्चर इम्पोज करना भी ज्यादा आबादी की निस्बत आसान अमल है। तीसरी बात यह है कि कम आबादी की सूरत में जमीन की स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी में इजाफा हो जाएगा और कुदरती वसाइल पे दबाव कम हो जाएगा, जो कि रूलिंग एलाइट के लिए बेहतर होगा। चौथा फायदा ये होगा कि वबाओं और बीमारियों से ऐसे लोगों को हलाक कर दिया जाएगा जो इनकी नजर में सोसाइटी पे बोझ है या जिनकी लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। इस अंदाज से उन्हें जवान ताकतवर लेबर फोर्स लंबे अरसे तक मुयस्सर रहा करेगी, जिसको ये इस्तेमाल कर सकेंगे। इस नुक्ते पे मजीद तहकीक के लिए ट्रांसह्यूमनिज्म पे रिसर्च कीजिए। यूट्यूब पे चंद अहम वीडियोस इस पे मौजूद हैं। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया की आबादी कम करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनमें इलाकाई और आलमी जंगें, फास्ट फूड्स और केमिकल ज़दा पैक खाने और मशरूबात का इस्तेमाल आम करना, मल्टी नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनियों के जरिए शदीद मगर खामोश साइड इफेक्ट्स वाली इदवायात की तरवीज, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरसेस और बीमारियों का आलमी और इलाकाई फैलाव, ग्लोबल वार्मिंग के जरिए कहत साली, सैलाब बर्पा करना, पीने के पानी और अजनास की कमी पैदा करना। ये तो रही इल्यूमिनाती की प्लानिंग। अब आते हैं इस मौजूदा वबा की तरफ। मेरे नजदीक इस वबा का पूरी दुनिया में फैलाव इसी शैतानी प्लान यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। इससे कबल एबोला वायरस, एंथ्रेक्स, HIV एड्स, हेंटा वायरस, डेंगू और मेर्स वायरस का कामयाब तजुर्बा किया जा चुका है। वबा के आगाज पे ही इंटरनेशनल मीडिया का इसको भरपूर कवरेज देना, सुर्खियों में लगाना, तमाम आलमी लीडरों का इस पे बात करना शुरू कर देना, लोगों को डराना और हिरासा किया जाना, फौरन लॉकडाउन और कर्फ्यू की बातें करना, ये सब वही SOP है जो प्रोपेगेंडे के लिए अफगानिस्तान और इराक हमले के वक्त इस्तेमाल की गई थी। बीमारी फैलाने के साथ साथ इस आलमी लेवल के प्रोपेगेंडे और मीडिया के जरिए हिरासगी के पीछे भी एक अहम मकसद कार फरमा था, और वो मकसद था माइंड एंड बिहेवियर कंट्रोल, जो कि इल्यूमिनाती के अहम तरीन हथियारों में से है। इस वबा का फैलाव महज एक ड्रिल है, एक मश्क है, एक तजुर्बा है। असल जंग अभी आगे है। मौजूदा वबा का फैलाया जाना और इसके हवाले से शदीद तरीन और शातिराना मीडिया कैंपेन एक अहम तजुर्बा है, जिससे मुस्तकबिल की मजीद प्लानिंग की जानी मकसूद है। मौजूदा वबा शायद 2-3 माह में कंट्रोल कर ली जाए और इस बार अमवात भी मजमूई तौर पर कम रहे, मगर मुस्तकबिल में ये तजुर्बा मंसूबा साजों को मजीद बेहतर और खतरनाक प्लानिंग करने के लिए सलाहियत दे देगा। इल्यूमिनाती ने इस वबा के फैलाव से इंतहाई अहम नताइज हासिल कर लिए हैं और बाकी नताइज वक्त के साथ साथ सामने आ जाएंगे, ताहम इनका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। नताइज ये हैं, पहली बात ये कि लोग बायोलॉजिकल वार के बारे में बिल्कुल लाइल्म निकले हैं और अभी तक इस वबा को एक कुदरती वबा ही समझ रहे हैं, जो कि उनके लिए एक मस्बत रिजल्ट है। दुनिया को लॉकडाउन करने का एक कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है और इस लॉकडाउन के नतीजे में लोगों, हुकूमतों, आजाद मीडिया और मजहबी रहनुमाओं के रद्द अमल को नोट कर लिया गया है और अब इस लॉकडाउन के असरात जांचे जाएंगे और प्लान की खामियों को दूर करके आइंदा मजीद बेहतर प्लान बनाया जाएगा। इस तजुर्बे के जरिए करंटीना का कंसेप्ट एक ही झटके में पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचा दिया गया है और उन्हें शदीद जहनी मफलूज करके समझा दिया गया है कि जब किसी को बीमार करार देकर करंटीना करने का हुक्म सादिर होगा तो इस पे एहतजाज नहीं करना, चाहे वो शख्स जिस्मानी बीमार हो या जहनी बीमार। यूं अजीज से अजीज तर रिश्ते को भी करंटीना होते देखकर एहतजाज न करने की हमें तरबियत दे दी गई है। चुनाचे कल जब हमारे मजहबी पेशवाओं को, सियासी सोच रखने वाले रहनुमाओं को जहनी बीमार करार देकर करंटीना किया जाएगा तो हम न सिर्फ खामोश रहेंगे बल्कि खुश होंगे। हमारे किसी अजीज को शैतानी मंसूबों की तकमील में रुकावट समझकर जब उसे खुद साख्ता वायरस का शिकार बनाकर हमसे दूर करने या वबा के बहाने कत्ल कर दिए जाने की बात होगी तो हम इस वबा की ट्रेनिंग और प्रोग्रामिंग की बदौलत कतन एहतजाज नहीं कर पाएंगे। मेरी बातों पे शायद कुछ दोस्तों को हंसी आ रही होगी, मगर इंतजार कीजिए, ऐसा चंद सालों या चंद दहाइयों में होने वाला है।
नाज़रीन ग्रामी, एक नतीजा ये भी हासिल हुआ है कि दुनिया भर की तरक्की याफ्ता मेडिकल साइंस अभी इल्यूमिनाती के मातहत काम करने वाली मेडिकल बायो इंजीनियरिंग लैब से बहुत पीछे है और ऐसे वायरस की कई माह से मुसलसल तबाही के बावजूद कोई लैब इसका तोड़ नहीं बना सकी, जो कि शैतानी मंसूबा साजों के लिए बहुत खुशाइन बात है। सबसे अहम नतीजा ये है कि दुनिया अब इन्हीं चंद फार्मास्यूटिकल कंपनियों की जानिब देख रही है जो इन शैतानी तंजीमों के कंट्रोल में है। दुनिया बेबसी के आलम में है, हुक्मरान भी बेबस होकर बिलबिला रहे हैं और घुटने टेक चुके हैं। आज पूरी दुनिया के अवाम और हुक्मरान उन मगरबी दवासाज कंपनियों की तरफ हसरत से देख रहे हैं कि कब ऐलान होगा कि वबा का इलाज दरियाफ्त कर लिया गया है। शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस बात पे शैतान के पुजारी किस कदर खुश हो रहे होंगे। वो मुस्तकबिल के उस मंजर के बारे में सोच रहे होंगे जब वो पूरी दुनिया में मसनूई कहत बर्पा करेंगे और सारा गल्ला और अजनास उन आलमी सरमायादारों के पास होगा और उनका सरबराह दजाल कहेगा कि मुझे अपना रब मानो तब ग़िज़ा दूंगा, फिर कहेगा कि अपना खुदा मानो तब बारिश बरसाऊंगा और अजनास दूंगा। इस बात का इशारा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में भी मौजूद है कि ग़िज़ा, अजनास, बारिश सब कुछ दज्जाल के कंट्रोल में चला जाएगा। लोगों के लिए ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। पहले भी एक वीडियो में अर्ज किया जा चुका है कि आने वाले सालों में वही कौम सुपर पावर कहलाएगी जिसके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल, बायो मैकेनिक टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च होगी। अगली जंगें जहां रिवायती जंगी साजो सामान से लड़ी जाएंगी, वहां मेडिकल इंडस्ट्री इंतहाई अहम किरदार अदा करेगी। याद रखें कि आलमी शैतानी तंजीमों की भी बहुत सी कमजोरियां हैं, जिनमें से एक मैस अवेयरनेस है। जितने ज्यादा लोग इनके शैतानी मंसूबों से आगाह होते जाएंगे, इनके शैतानी मंसूबे उतनी ही जल्दी मंजरे आम पर आएंगे और उन्हें शदीद मुजम्मत का सामना करना पड़ेगा। मजहब से लगाव, सत्ती मालूमात की बजाय हकीकी तालीम और शऊर और क्रिटिकल एनालिसिस की सलाहियत इन शैतान के पुजारियों की असल दुश्मन है। जिनसी बेरारवी और मजहब बेजारी, औरत की आजादी इनके अहम हथियार हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि दजाल तब जाहिर होगा जब उसके बारे में बात करना कम कर दी जाएगी। यही सूरत हाल आज है। दजाल की बात की जाए तो लोग उसे हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। ये वो फितना है जिसके शर से सहाबा और दीगर अंबिया तो एक तरफ, खुद अंबिया के सरदार हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। मौजूदा वबा दजाल के शरूर में से एक शर है और ये महज एक झूठा लेबोरेटरी टेस्ट है। अभी असल वबाएं आना बाकी है। जो बेबसी हम महसूस कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। आने वाले दजाली फितने और शर इससे कहीं बढ़कर होंगे। माज़अल्लाह। अंदाजा लगा लीजिए कि दजाल के शर कैसे होंगे और क्या वजह हुई होगी कि अंबिया ने भी उससे पनाह मांगी है। प्यारे दोस्तों, जरूरत इस अमर की है कि मुसलमान संभल जाएं और यकजा हो जाएं। अरब शहजादे अयाशियों और गैर जरूरी इमारात बनवाने की बजाय मुस्लिम ममालिक में तालीम और तहकीक पे दौलत खर्च करें और यहाँ मेडिकल साइंस, मेडिसिन, बायो इंजीनियरिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग के शोबों में मुहारत हासिल की जाए और ऐसे दजाली हमलों से बचने और अवाम में अमूमन और मुसलमानों में खसूसन कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने वाली नेचुरल इदवायात की तैयारी मुमकिन बनाई जाए, ताकि मुसलमानों को मगरिब की जानिब ना देखना पड़े और सख्त तरीन हालात में भी शैतान के पुजारियों के सामने घुटने ना टेकने की जरूरत पड़े। तब तक वेल डन इल्यूमिनाती, तुम इस तजर्बे में कामयाब रहे, मगर याद रखना तुम अपने मंसूबे बनाते हो और मेरा रब अपने मंसूबे बनाता है और बेशक अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके इल्म में खातिर खा इजाफे का बायस बनी होगी। अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक करते हैं तो इस वीडियो को अपने दीगर दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए उन्हें भी आगाही फ्राहम कीजिए और कमेंट बॉक्स में वीडियो के हवाले से हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।